दोस्तों कीनिया देश की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी, सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका के फाइनेंशियल हब एंड द वाइल्ड लाइफ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नायरोबी कीनिया से आप सभी का एक नई सुबह में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग मेरे अफ्रीकन एडवेंचर्स की वीडियोस देख रहे हो तो आप लोग जानते होंगे कि मैं ईस्ट, सेंट्रल और सदर्न अफ्रीका ट्रैवल करने लग रहा हूं और आज उसी तरह अपन एक नई डेस्टिनेशन जाने वाले हैं, नायरोबी कीनिया से जुबा, which happens to be the largest and the capital city of South Sudan. South Sudan is infamously known for being the most dangerous country in the world, poorest country in the world and the least camera friendly country in the world as well. और जैसा कि आप लोग जानते हो कि साउथ सुडान बहुत बदनाम है काफी डेंजरस कंट्री होने के लिए। इसी के साथ साथ ये सबसे गरीब देशों में से भी एक है और यहाँ के लोग लीस्ट कैमरा फ्रेंडली माने जाते हैं, यानी कि इस देश में वीडियो या फोटोग्राफी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिलहाल वक्त हो गया सुबह के 11:15 और मेरी फ्लाइट है ठीक 1 बजे दोपहर के नायरोबी कीनिया से जुबा साउथ सुडान। तो देरी ना करते हुए एयरपोर्ट पहुंचते हैं और अपनी कीनिया एयरवेज की फ्लाइट पकड़ते हैं। ये थी बाकी वो जगह जिधर मैं रुका हुआ था पिछले 1 हफ्ते से नायरोबी कीनिया में। ये एरिया है वेस्टलैंड्स, काफी अच्छा इलाका है ये नायरोबी का। चलते हैं बाहर, बैग ले लिया मैंने, रिसेप्शन पे चलते हैं। पहले तो मेरे को मेरा साउथ सुडान का वीजा भी प्रिंट करवाना है, बहुत महंगा वीजा है भाई। चलो भाई, वो आ गई अपनी टैक्सी एयरपोर्ट के लिए, बाहर ही चलते हैं, इनकी सिक्योरिटी बहुत है। बोल्ट, कैन आई कीप इट हियर? थैंक यू। And can I sit in the front? You can. Thank you. How are you? I'm good. You good? I'm great. Wonderful. Thank you. ये है भाई इधर का वेस्टलैंड्स इलाका जिधर मैं रुका हूँ, या पार्कलैंड्स कह लो। इधर से अपना एयरपोर्ट है 19-20 किलोमीटर। वैसे तो भीड़ रहती है नायरोबी में, पर एयरपोर्ट वाली रोड पे नहीं मिलेगी, तो शायद अपन आधे घंटे से कम में पहुंच जाएंगे। How far do you think is the airport from here? Oh, it's about say we will be there within half an hour. Within half an hour. Yeah. Okay. My flight is at 1 p.m. 1 p.m. Yeah. No, we got enough time. Okay. Yeah, we have enough time. Okay, great. Because right now is around 11. Yeah. Yeah, time. Okay, great. Because right now is around 11. Yeah. Yeah, so within the next that's 10 minutes. It's still very early. Oh, no, I need to be at the check-in counter at least 2 hours before 2 the hours flight. before? At least, Okay, 11, 12. Yeah, we are in time. Okay. The capital is, Delhi. Yeah, And I'm from a state next to Delhi. It's called Haryana. Haryana. Yes. So Haryana is it is a city. It's a state, province, and it has smaller cities. Okay. The name of my city is Hisar. Hisar. Hisar, that's correct. Hisar, okay. Yeah. We only know Mumbai. Oh, Mumbai, yeah. Yeah. Mumbai is central. And Karachi. Karachi is Pakistan. Oh, Karachi is Pakistan. Karachi is in Pakistan, yeah. But Pakistan used to be India. That's correct. Yeah. And That's then correct. they had a fight, or they seceded. Yeah, so we were ruled by the Britishers. Yes. Just like Kenya, you were a British protectorate. We were a Yes. British colony as well. Yes, okay. And in 1947, the countries were separated on the basis of religion. Okay. So the Muslims were asked to move to the other side, so Pakistan could be formed. Yes. And the people who wanted to stay, or the Hindus primarily, stayed in India. Okay. India is Majority Hindus, but it's Hindus. a secular country. Okay. The government is secular, and then there is like probably every religion in the world that exists in India. Okay. You're Hindu? Yeah, I'm Hindu. This area is Parklands, right? Yeah, this Parklands. Okay. This is Ojiji Road. Got it. So with Parklands, now we know that Parklands a lot of Indians. Really? Yeah. This area has a lot of Indians? Oh, a lot of Really? Indians. Yes. I saw it. I don't know why there Yeah, are a so lot many of Indians here. Indians. Of course, you know Indians, they like secluding themselves. Okay, what do you think? Can we use expressway, or we use, because you told me you got to be Yeah, there. we're in a rush. Yeah. But I don't have shillings with me Yeah. for the expressway, and I don't have M-Pesa as well. I'm a tourist. अब हम चढ़ गए भाई इनके एक्सप्रेसवे पे। एयरपोर्ट जाने के लिए ना इन्होंने एक अलग से रास्ता बना रखा है नायरोबी में, जो बिल्कुल खाली रहता है ये एक्सप्रेसवे, पर इसका टोल देना पड़ता है ज्यादा। लेकिन नॉर्मल रोड से जाओगे तो उसमें भीड़ मिलती है। पिछली बार भी जब 1 हफ्ते पहले मैं आया था एयरपोर्ट से इस शहर में, तो नॉर्मल रास्ते पे जाम लगा हुआ था, लेकिन एक्सप्रेसवे बिल्कुल खाली था, तो एक्सप्रेसवे से जल्दी पहुंच गए थे। अब इसका जो टोल लगा है मेरे पास, इनकी करेंसी तो बची नहीं, कीनिया करेंसी है कीनियन शिलिंग, और 1 भारतीय रुपये में 1.5 कीनियन शिलिंग होते हैं, 1 US डॉलर में 130 कीनियन शिलिंग होते हैं। मेरे पास करेंसी 0 बची, तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे देने के लिए टोल के लिए। और हालांकि टैक्सी मैंने कराई है बोल्ट से, यहाँ पे ऊबर भी चलती है, बोल्ट भी चलती है, फारस करके एक इनकी ऐप है वो भी चलती है, काफी सारी टैक्सी ऐप्स, और ऊपर से मोटरसाइकिल भी चलते हैं, कुछ भी ले लो। पर उसमें इंक्लूडेड नहीं होता ये जो टोल होता है ना एक्सप्रेसवे का, ये अलग से कैश दो, या फिर इधर M-Pesa चलता है डिजिटल पेमेंट्स के लिए कीनिया में, और बहुत सालों से चलता है। मतलब वैसे डिजिटली काफी एडवांस है कीनिया,
लोग कैश यूज कम ही करते हैं। अपने जैसे इंडिया में भी डिजिटल पेमेंट्स काफी चलती है, इधर भी बहुत सालों से चल रही है। पर एनीवे एयरपोर्ट पहुंचते वक्त हो गए एग्जैक्टली 11, 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। और साउथ सुडान की वीजा की मैं बात कर रहा था, भाई वीजा काफी ना इनका महंगा है पहली बात तो, साथ में कॉम्प्लिकेटेड तो है ही। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि वैसे तो ई वीजा है, इनकी वेबसाइट पे जाओ आप तुरंत अप्लाई करो ई वीजा, जल्दी से इनका जवाब आ जाता है 1-2 दिन के अंदर। लेकिन ना उसमें आपको इन्विटेशन लेटर अटैच करना कंपलसरी है। मैंने पहले अप्लाई करा और वीजा फीस बहुत ज्यादा है, $125 कुछ फीस थी, शायद 10-12 हज़ार का तो इनका वीजा है साउथ सुडान देश का। मैंने अप्लाई करा पर इन्होंने कह दिया कि इनविटेशन लेटर और ऐड करो तभी हम अप्रूव करेंगे। फिर मैंने वहाँ की एक टूर कंपनी से इनविटेशन लेटर मंगाया, फिर जाके मेरा वीजा अप्रूव हुआ कई हफ्तों बाद। हालांकि वैसे तो अगले दिन इनका जवाब आ गया था जब मैंने अप्लाई करा था, पर पता नहीं काफी टाइम लगा उसमें, काफी दिन मेरे खराब हुए नहीं, मैं पहले ही चला जाता। अब जब इनविटेशन लेटर ही मेरे पास आ गया, इसके अलावा भी आपको साउथ सुडान जाने के लिए बहुत सारे परमिट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि एक तो टूर परमिट कि भी आप किसी टूर कंपनी के साथ यहाँ पे होगे, उसके बाद आपका कैमरा क्लियरेंस या फिर फोटोग्राफी का क्लियरेंस, वो भी इनकी मिनिस्ट्री देती है। वो भी कोई वहाँ पे आपका एजेंट, कोई एजेंसी का आदमी, किसी टूर कंपनी का इंसान, वो आपके सारे परमिट्स लेगा। और इसी के साथ में एक सिक्योरिटी क्लियरेंस और लेना है, तो इतने सारे क्लियरेंसेस लेना, इनविटेशन लेटर लेना, इतना महंगा वीजा लेना, तो इसलिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है वहां तक पहुंचना। और उसके बाद फ्लाइट्स भी नहीं मिलेगी आपको ज्यादा जगह से, बहुत कम फ्लाइट्स उठती है। या तो आप जाओ कंपाला युगांडा, उधर से बस लेके जाओ, या फिर नायरोबी से फ्लाइट लो, या फिर आप एडिस अबाबा से ले सकते हो। तो बहुत एक तो मुश्किल है पहली चीज पहुंचना। और अगर आप पहुंच भी गए तो मेरे जैसा इंसान वहां पे फोटो वीडियो कुछ नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा सख्ताई है वहां पे ना, क्योंकि उनके वही CID के इंटेलिजेंस वाले लोग घूमते रहते हैं आसपास एयरपोर्ट के शहर में भी, आपकी मतलब हरकतों पे नजर रखते हैं, और जैसे ही आप फोन बाहर निकाल लोगे आपको पकड़ लेंगे। जबकि आपके पास कैमरा क्लियरेंस है फिर भी, उसके बाद भी हाल है उस देश में। और मेरे को सख्त हिदायत दी है जिन भी लोगों से मेरी बात हुई उधर की भी, गलती से भी एयरपोर्ट पे या कहीं भी कुछ भी रिकॉर्ड मत कर लेना। वहां पे खड़े रहते हैं उनके एजेंट से, और गलती से ही मत कर लेना, प्रॉब्लम पड़ जाओगे। तो मेरे को नहीं पता कैसे आज की वीडियो बनने वाली है। आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनी सिटी एज डेवलप्ड एज नायरोबी इन दिस पार्ट ऑफ अफ्रीका। Okay. It's quite interesting to be here. It's like you look at these tall buildings, these Sure. expressways. Sure. It's amazing to be here. We call it Nairobi nightlife. People don't sleep on weekends here. No. That's the Yeah. time people are winding up. I saw people going to the clubs at midnight, 1 a.m. Exactly. That's when the nightlife starts. That's it. It's insane. You are maybe, it always starts from Friday. Yeah, Okay, Friday around evening. yeah, Now, if the place is exciting, yeah. they will flock it the whole of Friday, Saturday, and Sunday. They are still there. That's insane. That is all about Nairobi life. Yeah. Eating and drinking. I noticed. Roasted. Did you ever? We call it nyama choma. Nyama choma. Never tried it. Nyama choma. Okay. You should. Next time when you come. Is it roasted chicken or what? No. That is roasted lamb. Lamb. Okay. Yeah, or goat meat. Goat meat, Lamb yeah. meat. Yes. Yeah. And some chicken also roasted. African way. I have your number. You're gonna take me next time. No problem. You just say my number. I'll say- But you'll have to party from Friday to Monday. Oh, really? No, Are you a party animal? Not anymore, I would say. I don't drink anymore. Yeah, So you for see me, now. I feel like I don't belong to these party places anymore. I try going out more often, but then Yeah. I don't drink and everybody is drunk. I just feel like Okay, no. ये देखो, ये मतलब दिख ही नहीं रहा फोन में, तो स्क्रीन ब्लर सी होगी अजीब सी, दिख ही नहीं रहा कितना अमाउंट है, जबकि मेरे को क्लियरली दिख रहा है 330 लिखा हुआ है। कैमरे वो चीज आने ही नहीं लग रही, 330 की है, और इन्होंने मेरे से 400 मांगे। तो मैंने किसी से मदद ली और इनको M-Pesa पैसे भिजवा दिए। इनके पास पैसे हो गए रिसीव। अब अपन निकलते हैं बाहर। द बैग्स एज वेल? No. जस्ट मी। Yeah, just you. ओके, चलो भाई, उधर स्क्रीनिंग से पैदल गुजरना है। ये बैग लेके तो नहीं भाई, डोंट रन अवे विद माय बैग्स। वो स्क्रीनिंग है, उधर से पैदल गुजरना है, गाड़ी इधर से निकलेगी, बैग नहीं लेके जाने। पर लोग तो लेके जा रहे हैं यार, पासपोर्ट वगैरह सारी चीज बैग में है, लैपटॉप वगैरह सब। पैसे हेल्थ स्क्रीनिंग के लिए शायद इधर हाथ धोने के लिए भी लगा रखी है चीजें। भाई ये क्या फॉर्मेलिटी थी, कोई तलाशी कुछ हुई नहीं, लेकिन बोले इस मशीन में से गुजर जाओ, बस गुजर गया मैं। और लिख रखा था हथियार नहीं लेके आ सकते, हथियार हो तो इसमें रख के ले जाओ। आ गया भाई अपन नायरोबी
एयरपोर्ट. What's the airport called? Jomo International. Jomo Kenyatta Jomo Kenyatta. International. Who is or was Jomo Kenyatta? Jomo Kenyatta was the first president Of Kenya. of Kenya. Wow. World's best gin. You like gin? Oh yeah. What's your favorite alcoholic drink? My favorite is Gilbis. What is Gibbies? Gilbis. If I miss my flight, you'll have to take me to Juba in your car, okay? Okay, yeah, next time, yeah. Not today. I have to go to Juba, Right South now. Sudan. Yeah, right now. You just do this. If I miss the flight, you take me in your car. You meet the flight, you come, we go to Juba right away. Perfect. Yeah. Sounds good to me. Thank you. Have a good day. You too, have enough flights. चलो भाई निकलते हैं. अराइवल तो इनका उधर है, मैं उधर से आया था पिछली बार. डिपार्चर इधर होगा कहीं. 1A ही है टर्मिनल. तो 11:30 हो गए और एयरलाइन का मैसेज आ गया कि आपकी बोर्डिंग स्टार्ट होगी और मैं तो भी चेक इन काउंटर पे ही नहीं पहुंचा. 1.5 घंटे में तो फ्लाइट टूट जाएगी. खुला भी है, बंद है. भाई कोई नहीं है यहाँ पे, तो ये तो मेरे को छोड़ के जाएंगे इस हिसाब से. भाई लो भाई हो गया अपना काम. बोर्डिंग पास मिल गया. कोई था ही नहीं, मैं ही था लास्ट में. पासपोर्ट ले लिया, बोर्डिंग पास ले लिया. येलो फीवर वैक्सीन भी चेक करी थी इन्होंने यहीं पे, पर रिटर्न टिकट वगैरह कुछ नहीं मांगी. पता है कौन जाके बस रहा है साउथ सुडान देश में. लो भाई होगी अपनी इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे साथ 10 से 12 मिनट बातें करी है. कहाँ घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो, इतना कैसे घूमते हो, कहाँ जा रहे हो. मैं बोला साउथ सुडान. किस लिए? मैं बोला टूरिज्म. बोला है झूठ क्यों बोल रहा है, वहाँ कौन जाता है टूरिज्म के लिए. इतनी लंबी बात खींची गई. एक बार दोबारा सिक्योरिटी करते हैं, फिर बात करते हैं. ये खड़ी फ्लाइट्स इनमें से कोई सी अपनी है. हो गए फारिग, चलते डिपार्चर पे. 20 है अपना गेट. कुछ ड्यूटी फ्री आ गया. इमिग्रेशन पे यार अच्छा मजाक हुआ, बताता हूँ. ये रहा 16, वो रहा 21, वो रहा सामने अपना 20A. अभी तो यहाँ नहीं हो रही बोर्डिंग. वैसे ही मैसेज गलत आया था, शायद डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रहे होंगे उस टाइम जब कीनिया एयरवेज का मेरे पास मैसेज आया आधा घंटा पहले. बोर्डिंग स्टार्ट ही नहीं करी अभी. तो टाइम से ही अपन 1 घंटा है अभी भी फ्लाइट उड़ने में. कोई ढंग की सीट दिख ही नहीं रही थी. इधर तो इधर बैठ सकते एक बार. भाई जैसा मैं बता रहा था कि भी गया मैं इमिग्रेशन पे, मतलब इमिग्रेशन वाला बोला कहाँ जाओगे. मैं बोला जुबा साउथ सुडान. मेरी तरफ ऐसे देखने लगा कि भी वहाँ क्यों जा रहे हैं. फिर मैंने इससे पूछा कि भी क्यों जाओगे. मैं बोला घूमने, टूरिज्म. बोला क्यों झूठ बोल रहे हो, वहाँ कौन जाते हैं घूमने के लिए, वो कोई घूमने लायक जगह है. बोला सच्ची बताओ किस काम से जा रहे हो. मैं बोला सही में घूमने जा रहा हूँ. बोले क्यों जा रहे हो घूमने वहाँ. मैं बोला कि मैं ईस्ट और सेंट्रल और सदर्न अफ्रीका ट्रैवल करने लग रहा हूँ. बोला क्यों कर रहे हो. मैं बोला ऐसे ही बस मेरा मन है घूमने का. बोला अच्छा कब से कर रहे हो, ऐसे कैसे घूमते हो, तुम्हारा तो पासपोर्ट भरा हुआ है. मैं बोला ये तो मेरा चौथा पासपोर्ट है. बोले पहले वाले एक्सपायर हो गए. मैं बोला नहीं वो भर गए थे. वो हैरान हो गया. बोला ऐसे क्यों घूमते हो, इतना ज़्यादा कैसे घूमते हो, जब घूमते नहीं हो तब क्या करते हो. तुमने दुनिया घूम के क्या जाना, क्या चीज़ सीखी, क्या नोटिस करा, मेरे को बताओ. घूमने की सबसे अच्छी चीज़ें जो तुम्हें लगती है, सबसे बेकार जगह कौन सी लगी तुम्हें घूमने के लिए, कौन सी ऐसी जगह जिधर तुम वापस नहीं जाओगे. ऐसे सवाल चलते रहे. मैं जवाब देता गया. साथ वाले काउंटर्स पे और लोग आ रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं. फिर वो भी जा रहे हैं. फिर किसी और आदमी का नंबर आ जाता है, औरत का आ जाता है, वो साइड में खड़े होकर मेरी बातें सुनते हैं. फिर वो भी निकल जाते हैं. लेकिन मेरा इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ. मैं जवाब दिए गए, इमिग्रेशन ऑफिसर पूछे गए, उनमें भी बहुत क्यूरियोसिटी जाग गई. फिर मेरे से यूँ पूछने लगे भाई कितने देश घूमे अफ्रीका में. मैं बोला कि 28-30 घूमा हूँ. बोले अच्छा. बोले दुनिया में कितने घूमे. मैं बोला भाई 112-13 कुछ घूमा हूँ शायद. फिर हैरान हो गए, पर यूँ बहुत पोलाइट थे, प्यार से बात कर रहे थे बहुत. फिर आखिर में बोले कि मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट विश करता हूँ और ऐसे घूमते रहो और तुम्हारे से दोबारा मिलना चाहूँगा कभी. मैं बोला ज़रूर जी आऊँगा दोबारा, मैं एक बार फिर से अपन करेंगे ये सारी बातें. फिर उन्होंने मारी स्टैम्प पासपोर्ट और मैं पासपोर्ट लेके आ गया सिक्योरिटी पे. टाइमली होगी पर चीज़ें एयरपोर्ट पे देर नहीं लगी. सारा काम हो गया, आधे घंटे से कम में ही हो गया सारा काम. ये टीवी स्क्रीन पे सारी सिटीज़ के डिपार्चर दिखा रखे हैं. होगी भाई शुरू बोर्डिंग. 12:13-14 हुए होंगे अभी, 12:15 भी नहीं हुए पूरे. बोर्डिंग होगी स्टार्ट. ये देखो लिख भी रखा है टाइम 12:14, पर 1 बजे की फ़्लाइट है. 45 मिनट बिठाए रखेंगे अभी ये. चलो चढ़ ही जाते हैं, शायद पहले उड़ा देंगे. आखिरी बार कुछ थोड़ी बहुत वीडियो बना लेते हैं. पता नहीं क्यों एयरपोर्ट पर कुछ भी बनेगा या नहीं बनेगा. पर यहाँ पे अब जब मैं बोर्डिंग के लिए आया ना, तो इन्होंने मेरे से मांगा वीज़ा साउथ सुडान का, जो कि मेन काउंटर पे मांगना नहीं. जब पहले चेक इन के लिए गया था मैं, उधर मांगते हैं जनरली. और फिर इन्होंने रिटर्न टिकट भी मांगी मेरी, मतलब कंट्री से बाहर निकल गया. हालांकि शुरुआत में मांगते सब चीज़ें, शुरुआत में कुछ नहीं मांगा, अभी मांगी ये सारी चीज़ें. यहाँ भी इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने चेक करे और बोले अब जाओ फ्लाइट में. वो लगी हुई अपनी फ्लाइट. घुसते हैं यहाँ से अब अंदर. जैसा मैं कह रहा था, यहाँ पे तो कीनिया में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी गोइंग है सब कुछ. वीडियो बनाओ, कुछ करो, आराम से बात करो कैमरा से. वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचते ही फ़ोन निकालते ही जेब में से गड़बड़ हो जाएगी. चलो घुसते हैं एक बार, बैठते हैं फ्लाइट के अंदर. पहले मैं प्लेन के हाथ लगाने लग गया था बीच में घुसने से पहले, ऐसी एक रिचुअल सी. अब नहीं लगाऊंगा.
लोगों ने सोचा कि मैं बहुत सुपरस्टिशियस हूँ। ये पता नहीं थोड़े ऊंचे क्यों नहीं बना देते। 29 जे है अपनी। चलो चलो अभी तो 15 है। लो भाई जगह बनाते हैं। बाकी एक ऐसे देश जाने लग रहे हैं जिधर फाइनली मेरे को छोटा फील होएगा, लंबा फील नहीं होएगा। मैं लगभग 6.5 फुट का हूँ, लेकिन साउथ सुडान में मेरे से लंबे भी बहुत लोग देखने में मिलेंगे। साथ वाली सीट अपनी खाली है, बढ़िया रहा। पैर दोनों सीट्स में रख के बैठा हूँ मैं, जगह खूब है। खाना आ गया अपना डिलीशियसली अफ्रीकन करीबू, यानी कि वेलकम होता है शायद, हाँ स्वाहिली में। ये रहा इसमें चिकन और कुछ सब्जियाँ, साथ में ब्रेड, एक केक, बटर है क्या, ये रहा ब्रेड है। ये तो ढंग से इन्होंने मक्खन दिया नहीं। मजबूरी में जितना खाना खाया गया उतना तो खा दिया भाई। डिलीशियसली अफ्रीकन, डिलीशियसली तो नहीं है, बस अफ्रीकन ही है। भाई जल्दी लैंड कर दी इन्होंने तो। 1:45 बजे नहीं 1:45 बजे लैंड करना था, 1:15 बजे ही कर दिया। इधर का टाइम डिफरेंस है वैसे 1 घंटा पीछे इधर का टाइम कीनिया से। 1 बजे उड़नी थी नायरोबी से और 1 घंटा 45 मिनट की फ्लाइट थी, तो यानी कि लोकल टाइम 1:45 PM पे लैंड होना था, पर 1:15 ही होगी। जल्दी ले आए, टाइम से उड़ा दी थी वैसे तो, 1.25 घंटे में बता दिया। देख लो भाई कुछ नज़ारे इनके एयरपोर्ट के, अजीब सा ही लग रहा है यार, क्योंकि बहुत सारे देशों ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रखी है इधर के लिए, क्योंकि इधर आर्म्ड कन्फ्लिक्ट और वायलेंट क्राइम्स है काफ़ी। तो US कनाडा जैसे देशों ने साफ करके कि यहाँ मत आओ, मत करो यहाँ ट्रैवल। भाई फ्लाइट से निकलते हैं बाहर और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे को इंटेलिजेंस वाला पकड़ के बिठा ले और पूछे कि भाई क्यों तू यहाँ पे बनाने लग रहा है। किसी तरह बाहर निकलते और आपको बताऊँगा सिचुएशन एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद, क्योंकि बहुत रिस्की है। ये सामान वामान अपना निकलता है ठीक ठाक, बस अपन भी किस तरह बाहर निकल जाए एक बार। लो भाई मेरी 113वीं कंट्री में स्वागत है। गर्मी इधर तो भयंकर, नायरोबी में तो ठंड सी थी, यहाँ तो भयंकर गर्मी है। ऑलरेडी काफी लंबे लंबे लोग दिखने लग रहे हैं मुझे यहाँ पे एयरपोर्ट पे। 5 मिनट से चढ़ रहे, पता नहीं कितनी दूर उतार दी, 700-800 मीटर दूर उतारा है फ्लाइट ने। आ गया भाई एयरपोर्ट के बाहर, किसी तरह बताता हूँ क्या हुआ अंदर। बहुत तलाशी थी। तो दोस्तों एयरपोर्ट पे मैं उतरा, आप लोगों को मैंने लास्ट क्लिप दिखाई फ्लाइट से उतरने से पहले फ्लाइट में बैठे हुए। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि मेरे को बताया गया था कि यहाँ पे इनकी इंटेलिजेंस वगैरह के लोग घूमते रहते हैं, कैमरा निकाल लो ही मत। और वैसे भी इतनी इंस्टेबिलिटी चल रही है, बहुत ही मतलब सेंसिटिव जगह है, तो मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी। प्लेन से उतर के मैं गया सीधा अराइवल पे। अब अराइवल भी इधर 2 थे। मैं अराइवल से पहले था एक हेल्थ स्क्रीनिंग, उधर अपना येलो फीवर कार्ड दिखाओ कि येलो फीवर की वो लगी हुई है आपके वैक्सीन, वो कार्ड दिखाओ। उसके बाद 2 अराइवल थे, तो मैं पहले वाले में घुस गया। अब उसमें एसी चल रहा अंदर अराइवल पे, और 2 काउंटर थे और चारों तरफ ऐसे ही भीड़ सी हो रखी, लाइन वाइन कुछ नहीं, मतलब 2 काउंटर के आगे खूब सारे लोग खड़े हैं, एक काउंटर राइट में एक लेफ्ट में और बीच में खूब सारे लोग खड़े हैं। जैसे ही नंबर आए आगे चले दो। तो उसमें से एक काउंटर पे मैं गया, मैंने मेरा वीज़ा दिखाया, बोले किस लिए आए हो, मैं बोला घूमने आया हूँ। कुछ सवाल जवाब नहीं करे, एक आधे से तो पूछ रहे थे एड्रेस बताओ, जो यहाँ पे काम करने आए थे लोग पता नहीं, या नौकरी करने आए थे, मुझे नहीं पता। टूरिस्ट तो मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई था एयरपोर्ट पे। उनसे फिर भी सवाल जवाब करे, पर मेरे से नहीं करा। बोले कि पहली बार है, मैं बोला हाँ। बोले वेलकम टू साउथ सुडान, और मेरे स्टैम्प मार दी। अब इसके बाद मैं पासपोर्ट लेके जब आगे गया ना, बैगेज बेल्ट की तरफ जाने लगा, मैंने पूछा ऑफिसर से कि भी बैगेज बेल्ट कहाँ है, और जितने भी ऑफिसर्स दिख रहे थे ना, मतलब पुलिस वाले या फिर इमिग्रेशन ऑफिसर्स या फिर एयरपोर्ट का स्टाफ, ऐसे लंबे लंबे लोग 6.5 फुट के 7 फुट के। और बहुत रेयर होता है ऐसे कि मेरे से लंबे 1-2 इंसान से ज़्यादा कोई देखने को मिले, और पूरा एयरपोर्ट ही मान लो इतने लंबे लंबे लोग, अजीब सा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं बोला कि बैगेज बेल्ट कहाँ है, बोले नहीं बैग यहीं आएगा आपके पास। मैं बोला ये क्या सिस्टम है, बोले ये ना VIP एरिया, VIP एरिया में आए हो, $30 इसकी फीस है, आप यहाँ पे बैठ के स्नैक्स वगैरह खाओ, आपका बैग यहीं पे आ जाएगा। मैं बोला ना मेरे को तो नॉर्मल में जाना है, मैं तो गलती से आ गया VIP वाले में। बोले अच्छा फिर आप बाहर निकल के दूसरे अराइवल में जाओ। मैं बाहर निकला, फिर दूसरे अराइवल में घुसा, और दूसरे अराइवल में दोबारा इमिग्रेशन होनी थी, पर मैं बोला कि मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लग चुकी है, मैंने VIP इमिग्रेशन पे लगवा ली स्टैंप, और मेरे को बस बैग लेना है मेरा। बोले अच्छा ठीक है निकल जाऊँ। वहाँ से मैं बाहर निकला, फिर एक और ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट चेक करा, पूछा कि भाई क्यों आए हो, क्या करोगे यहाँ पे। मैं बोला घूमना है। वो भी बहुत फ्रेंडली थे, बोले ठीक है वेलकम टू साउथ सुडान,
इंजॉय और ये वो। फिर मैं पासपोर्ट लेके बैगेज बेल्ट पे जा रहा था तो मेरा बैग रुकवाया, छोटे बैग की तलाशी ली। अब उसमें माइक वाइक निकल गया। मुझे डर था कि ये चीज़ ना पकड़े, तुम सीधा उसके हाथ में माइक है। बोले ये क्या चीज़ है? मैं बोला स्पीकर है। बोले अच्छा अच्छा ओके ओके। फिर बोले कोई नहीं ले जाओ। अब बड़ा बैग भी आ गया मेरा बैगेज बेल्ट पे। बड़ा बैग उठाया तो उसकी भी तलाशी करानी थी दोबारा। बड़ा बैग मैंने खोला तो कुछ था नहीं, इसमें तो कपड़े थे। बोले ठीक है ले जाओ। वरना आमतौर पे इन देशों में, अफ्रीका में आप लोग जानती हो कि छोटी मोटी ब्राइब या घूस खिलाना बहुत आम बात है। बैग्स की तलाशी होती है, कभी कस्टम वाले कोई भी मांग लेते हैं। और यहाँ पे एक तरह से पार्ट ऑफ सिस्टम है, इतना अजीब नहीं माना जाता। अब जैसे हम चौक पे आ गए, एक बार रोकता हूँ रिकॉर्डिंग। पीछे जैसे एक पुलिस वाला था, ट्रैफिक पुलिस का था। यहाँ पे इनको नहीं दिखना चाहिए कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब एयरपोर्ट पे सारी चीजें होगी, फ्लाइट जल्दी लैंड होगी थी, 1:45 पे लैंड होनी थी, लेकिन अभी 1:49 पे था। मैं गाड़ी में बैठा हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं किसकी गाड़ी में बैठा हूँ, यहाँ कैसे आ गया? एयरपोर्ट से सीधा मेरे को लेने कौन आ गया? मैं तो एकदम कंफर्टेबल हो गया। तो अपने हरियाणा से ही राजेंद्र अहलावत भैया है, मिस्टर राजेंद्र अहलावत, इधर रहते हैं जुबा साउथ सुडान में, और यहाँ की वीडियोज भी बनाते हैं। एक्सप्लोरर अहलावत के नाम से ना भाई साहब? कर दो राम राम कर दो। वेलकम, राम राम भाई, सारे भैया ने और भाई प्रेमी, वेलकम टू साउथ सुडान। धन्यवाद भाई। कंट्री के अंदर आपका स्वागत है। और अभी आप देखना आगे आगे क्या क्या मिला है। मैं तो चलो फिर भी अंडने आया हूँ, आप थोड़े रहे करो खतरनाक में। अपना काम मजे लगन लग गया अपना। तो आदत सी पड़ रही है, कोई ऐसी दिक्कत रहा है। कैसा लोगे आपने? मैं 2008 में आया था जी। लग गया पूरा? जी पूरा लग रहा है। फिर आड़े मतलब इंग्लिश है बोल लग रहा या इनकी? और इनकी मेन जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी है। अंग्रेजी, हाँ। अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। फिर इनकी ट्राइब ट्रूब की नहीं आ रही वो अलग है, अलग डिनका वगैरह? वो दुनिया भर की है। ठीक है चलो, अंग्रेजी तो काम चल जाएगी, खूब काम चल जाएगा। बढ़िया सुसरी डाल है। ठीक है चलो, तो अब यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे भैया? अभी हम जाएंगे आपका सिम दिलाने, सिम कार्ड लेने। हाँ, ठीक है, सिम ले लेते हैं यहाँ से। ठीक तो है। ये जो है मेन एयरपोर्ट रोड है जहाँ से हम जा रहे हैं अभी, ठीक है, और इसी से हम आगे अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। चलो बेस्ट है। ये देख लो कुछ सड़कें, इसी कारण मैं पिछली सीट पे बैठा। भैया बोले कि आगे मेरे फोन में कैमरा होगा ना तो देख लेगी पुलिस, रिकॉर्ड नहीं करने देगी। तो पीछे शीशे काले, किसी को दिखेगा नहीं। यहाँ से हम फिर भी सड़कों की वीडियोस बना सकता हूँ। और ये सब हाल तब है जब अपन ने कैमरा क्लियरेंस और पता नहीं कितने सिक्योरिटी परमिट ले रखे, उसके बाद भी इतना डर के अपने को रहना पड़ेगा वीडियो के चक्कर में। क्योंकि लोग ना बहुत ज़्यादा कम कैमरा फ्रेंडली इधर, चिढ़ जाते हैं कैमरा देखते ही। क्योंकि इनमें ट्राइब्स में आपस में कुछ ना कुछ वायलेंस चलता रहता है, लड़ाइयाँ चलती रहती है। तो ये सोचते क्या होता किस इंसान का मोटिव क्या है, इनको थोड़ी पता है भाई हम तो घूमने आए हैं इस देश को। तो इसलिए लोग थोड़े इस मामले में काफ़ी सेंसिटिव है। सिम कार्ड लेते हैं एक बार दोस्तों चल के। 2011 में ये देश फॉर्म हुआ है, इससे पहले सूडान का ही पार्ट था। तो पूरी दुनिया की न्यूएस्ट कंट्री भी है ये साउथ सूडान। बाहर निकलते, गर्मी भी अंकर है यार इधर, लेकिन भाई 10 मिनट तो हो गए अभी तक मिला नहीं हमें सिम। यूँ मेरी फोटो खींची सिम कार्ड के साथ, ऐसे बिठा के बोल लेगी ना 3-4 तरह के सिम कार्ड है। एक है 1000 का इनकी लोकल करेंसी का, एक है 2000 का, एक 5000 का, एक 10,000 का। मैं बोला फर्क क्या है? तो बोले कि एक में 1 नंबर है, एक में आपको 2 नंबर मिलेगा, एक में 3 नंबर, एक में 4 नंबर। इधर नंबर को क्या करना? बोले सबसे सस्ते वाला दे दो। चलो भाई सिम कार्ड ले लिया है। इनकी करेंसी बताता हूँ आप लोगों को। पहले तो करेंसी इधर की साउथ सुडानीज पाउंड, और एक $1 में अगर आप गूगल पे देखोगे आपको दिखाएगा लगभग 4000 साउथ सुडानीज पाउंड, यानी कि अपने एक भारतीय रुपए में 47 के करीब साउथ सुडानीज पाउंड या फिर SSP कह लो। वहीं अगर ब्लैक मार्केट की हम बात करें, ऐसे जितने भी देश है मतलब आमतौर पे जिधर इंस्टेबिलिटी हो, क्राइसिस चल रही हो, फॉरेन करेंसी की कमी हो, इन देशों में ब्लैक मार्केट रेट अलग से होता है। मतलब कि ऑफिशियली तो आपको बैंक का रेट जो मैंने बताया वो दिखेगा, लेकिन जब आप उस देश में आओगे, लोकल किसी से पैसे बदलवाओगे, वो आपको ज़्यादा पैसे देगा डॉलर के बदले, क्योंकि देश में फॉरेन करेंसी या फिर डॉलर की कमी होती है। तो ब्लैक मार्केट रेट है यहाँ पे एक $1 में लगभग कितना? 5400 भाई, 5400 के करीब आपको साउथ सुडानीज पाउंड मिल जाएंगे, यानी कि एक भारतीय रुपए में 65 के करीब हो जाएंगे शायद साउथ सुडानीज पाउंड। सिम कार्ड की कीमत थी 2000 ली इसने हमसे, पता नहीं कौन से वाला दिया था, पर 2000 भी देखो आधा $1 हुआ, आधे $1 से भी कम। 35-40 रुपये का सिम कार्ड आ गया अपना। इसमें शायद आधा GB इंटरनेट फ्री भी मिलेगा, थोड़ी बहुत कॉल भी होंगी, बाकी हम टॉप अप कर लेंगे। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे हो कि भाई यहाँ क्यों है इतनी इंस्टेबिलिटी, किस बात की लड़ाई चलने लग रही है और कैसे ये सबसे न्यूएस्ट नेशन है? तो दरअसल साउथ सूडान भी पहले सूडान देश का ही पार्ट होता था, और पहले ना यहाँ पे काफी सिविल वॉर पहले से चलते आए। ये लोग बोलते कि भाई हमें अलग करो ऊपर नॉर्थ सूडान से, क्योंकि वो है अरब से एक तरह से। क्योंकि जो रीजन था अफ्रीका का, ये जो रीजन था जो मॉडर्न डे सूडान है, ये पहले ना इजिप्ट के अंडर आता था, इजिप्ट और ब्रिटिश के अंडर, ये दोनों इसे जॉइंटली रूल करते थे। और वो जो है नॉर्थ सूडानीज वो अफ्रीकन और अरब मिक्स से है, और उधर अरबिक भी ज्यादा बोली जाती है। साउथ सूडान वाले लोग बोलते हैं कि भाई तुम लोग इस्लाम फॉलो करते हो ज्यादा, तुम तो अरब्स हो, मिक्सड अरब्स के साथ, हम
असली अफ्रीकन है, हमारा रिलीजन अलग है, हम या तो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं या फिर ट्रेडिशनल बिलीफ्स में मानते हैं, कल्चर अलग है, हम अरेबिक नहीं बोलते, तो हमारा देश अलग होना चाहिए। तो तब से ना इधर सिविल वॉर चलते आए। पहला मेरे ख्याल से 1972 में इन्हें ऑटोनॉमी दे दी थी साउथ सुडान को कि भी ठीक है तुम ऑटोनॉमस रीजन हो गए, लेकिन 1983 में वो फिर खत्म कर दिया, फिर दोबारा सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, फिर इन्हें फाइनली 2005 में दोबारा ऑटोनॉमी दे दी गई, लेकिन फिर भी ये लोग खुश नहीं थे, बोलते हमें तो अलग देश बनाओ, हमें नहीं रहना तुम्हारा पार्ट। फिर 2011 में शायद रेफरेंडम हुआ था, 9 जुलाई को मेरे ख्याल से, इसे एक इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट बना दिया गया, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई साउथ सुडान। इसी वजह से जो सबसे नई कंट्री वाइडली जो रिकॉग्नाइज्ड है यूएन के द्वारा वो ये ही है साउथ सुडान, जो सबसे नई कंट्री फॉर्म हुई हो, 2011 में बनी थी, अभी 2025 है, सिर्फ 14 साल पुराना देश है। अब ये देश नया बन भी गया, ठीक है, इनको आजादी मिल गई, पहले तो नहीं था कि हमें सुडान से अलग करो, हो गए अलग, इन्हें मिल गई आजादी। अब ये लोग लड़ रहे आपस में, इधर ना खूब सारे एथनिक ग्रुप्स है या फिर ट्राइब्स है, आपने सुना होगा, जैसे कि डिनका लोग है, लगभग 35% के करीब साउथ सुडान में डिनका लोग है, 15% के करीब है जो दूसरा सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है नुएर। तो डिनका और नुएर आपस में लड़ते रहते हैं लोग। फिर नुएर के बाद भी और काफी शिलुक है, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स है और सबकी अपनी अपनी भाषा है, अपने अपने कल्चर है, मुंडारी है जो अपन देखने वाले हैं। तो ये थोड़े थोड़े परसेंटेज सबकी है, और वैसे लिंग्विस्टिकली काफी डाइवर्स है साउथ सुडान, क्योंकि इतने सारे ये ग्रुप्स बने हुए, सबकी अपनी भाषा है, अपने कल्चर है। तो मेरे ख्याल से 60 से 70 तो यहाँ पे डायलेक्ट्स और लैंग्वेजेस है लोकल, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। अरेबिक नहीं बोलते यहाँ पे, मतलब लोग जानते भी होंगे पर ऑफिशियल दर्जा नहीं दे रखा है अरेबिक का, जबकि सुडान जो है ऊपर, उधर लोग अरेबिक बोलते हैं और अरेबिक ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, पर इधर की भी हम तो अलग है ये दिखाने के लिए, इधर अरेबिक नहीं है ऑफिशियल लैंग्वेज। भाई साहब बोलते हैं वैसे लोग थोड़ी बहुत अरेबिक यहाँ पे जो है ना, इनकी लोकल अरेबिक चलती है, अच्छा, हाँ मैंने सुना था शायद जुबा अरेबिक या कुछ, अरेबिक हाँ सुना था मैंने, याद आ गई। वो चलती है और इंग्लिश चलती है, 2 लैंग्वेज चलती है। अच्छा चलो भैया, अब किधर आ गए अपन? अब हम शहर से थोड़ा बाहर निकले हैं। अच्छा, तो शहर रह गया परली साइड, एक्चुअली हम लोगों के वेयर हाउसेज वगैरह हैं और हाँ। अकोमोडेशन यहीं पर है। सही 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 है, तो फुल ऐसा एरिया है, अंदर भीड़ भाड़ वाला है, वहाँ छोड़ा है अभी। बढ़िया है, चलो बाद में दिखेगा। शांति में आ गए। दोस्तों मजे हो गए अपने, भिंडी मिल गई, दाल मिल गई, रोटी साथ में दही प्याज और खीरा, घर का खाना मिल गया, मजे ही हो गए। थैंक यू भैया, मजा आ जाएगा। मोस्ट वेलकम भाई, अपना फील एट होम। बस मैं यही कह रहा था भैया को पता ही नहीं चला, आज तो नई देश में आ गया, नहीं पहले दिन तो ऐसे दुखी होते हैं एयरपोर्ट पर चीजें समझने में, 1-2 घंटे तो ऐसे ही खराब होते हैं। 4 घंटे पहले मैं नहा रहा था कीनिया अपने उसमें, 5 घंटे पहले, अब यहाँ पे घर पे भी आ गया। भाई ये अपना कमरा, इतना बड़ा कमरा दे दिया भैया ने रुकने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हो साउथ सुडान के लोग पूरी दुनिया में सबसे लंबे माने जाते हैं, तो बाहर चल के अपन कोशिश करेंगे कि नहीं लोकल लंबे लड़कों से मिल सके और देख सके कि भी कितने लंबे यहाँ के एवरेज लोग किसी बास्केटबॉल कोर्ट पे या कोई बच्चे खेलते हुए दिखेंगे तो उनसे जाके मिलेंगे, और जितना भी सिटी को अपन एक्सप्लोर कर पाएंगे आज के दिन में वो करेंगे। तो इस वीडियो को रखते ही यहीं तक, और अगली वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ मैं जुबा सिटी से।